all of you. I hope you all are doing well. So as you know how to draw a graph for linear equation in two variables, okay, as this I explained in my previous video part 5, so please watch that. Okay, so now in this video I am going to start the exercise 4.3. See the first question. Draw a graph of each of the following linear equation in two variables. Okay, so we have to draw the graph of all these given equations. So let's start with the first one, x plus y, and you know the first step for draw a graph is you have to find the solution. Okay, so let's find the solution for this equation. So I can write this as 4 minus y. Okay, I have explained this in my previous video, so go and watch that. So you can see if I am going to take the value for y, so first thing that you have to make a table, or you can say a box, okay, in which you will put x and y, and I told you that you require two minimum values to draw a graph. So I am going to find the three values here. Okay, it's all up to you. So now I am going to take y as 0, so you will get 4x, and if I am going to take y as 1, so you will get 3, and here if I am going to take 2, so you will get right. So now let's plot a graph. So this is your graph paper. Okay, so always use a scale and pencil to make your graph. All right, so I am going to put the first coordinate 4 and 0, means on x it is 4 and y is 0, so this will be on the line. या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर y 0 है सो दैट लाइन विल बी ऑन, दैट पॉइंट विल बी ऑन दी x एक्सिस. ठीक है, अगर यहाँ पे x 0 होता है सो द अदर पॉइंट विल लाई ऑन दी y एक्सिस. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट 4, 0. नाउ द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 3 and 1. So your x is 3 and your y is 1. So you will write here 3 and 1. Okay, then 2 and 2, similarly we will put the value for 2 also. So y is 2 and x is 2. Okay, so at this point will be lie this na value. This is not here, this is not 2 and 1, this is 3 and 1. So you will show it here. This is the point. Okay, then 2, 2 is this one, 2, 2. So now you will take your scale and join all these points. So always use a scale. Okay, मैं यहाँ पे scale use नहीं कर रही हूँ इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. So use your scale and make it a straight line. So this is the line for the equation x plus y is equals to 4. तो इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन होता है एक ग्राफ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, बहुत इजी है. आपके एक्सिस के नेम प्रॉपर होने चाहिए, इसके 1 मार्क होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का 1 मार्क होता है, आपके पॉइंटर्स के मार्क्स होते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये. ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लो. इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, सो 2 + y विल बी द फॉर्म, देन यू विल टेक द वैल्यू फॉर y एंड यू विल गेट x. इसी तरीके से इसके लिए भी आप बॉक्स बनाइए, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करिए और प्लॉटिंग कर दीजिए. बहुत ईजी है. यहाँ से भी आप पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. सिमिलरली फॉर दिस एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नाउ सी क्वेश्चन 2. गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस. नाउ वी हैव द सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन गिवन है एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितने लाइन्स बन सकते हैं एंड वाई. ठीक है, आपको इन दोनों के आंसर बताने हैं. So let's write the equation. The solution is 2, 14, right? So the equation can be, if you are taking this as x and this as y, so you can write x plus y is equals to 16. This solution satisfy this equation, right? तो ये इसको satisfy कर रहा है, तो this can be our first equation. ऐसे क्या बहुत सारे लिख सकते हो. You can write 7x minus y is equals to 0. ठीक है, ये भी इक्वेशन है. कैसे हो सकता है आप खुद सोचोगे. आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 2, सो 7 × 2 विल बी 14 एंड 14 - 14 इज 0. तो ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर. इन्फिनाइट. बहुत सारे लाइन्स आप बना सकते हो. आपको पता है कोई भी पॉइंट से आप इन्फिनाइट लाइन बना सकते हो. ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. सो द आंसर विल बी
we can draw infinite lines. Why? The reason is because the point का जो point होता है उससे क्या कर सकते हैं, हम infinite line draw कर सकते हैं. So there can be infinite such lines. इस तरीके के हम बहुत सारे lines बना सकते हैं. बस इसका simple सा आंसर है. Now the third question is, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation, इस equation पे ये point lie करता है, right? So find the value of a. तो हमें a की value निकालनी है. So you can see this is your x and this is your y. So find it. 3y is 4 is equals to a and the bracket 3 plus 7, right? So this will be 12, 3a plus 7, so you will get 12. Now you can transpose plus 7 to LHS, you will get minus 7. Then this is 5 and 3a, so your a is 5 upon 3. This is your answer, right? So the value of a is 5 upon 3. Very easy. Now let's see the next question. So this is your one of the most important question and it is I think ये तो आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो उसको ज़रूर अच्छे से करना और बहुत ध्यान से देखो कि क्या इस क्वेश्चन का मतलब. The taxi fare in the city is as follows. Okay, the rules are given for the taxi fare. For the first kilometer, the fare is ₹8. Fine. Now for the subsequent distance is ₹5 per kilometer. Now subsequent distance का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 किलोमीटर के लिए पैसे दे दिए हैं तो जो उसके आगे के डिस्टेंस होंगे ना, जो उसमें ऐड होते जाएंगे, that is your subsequent distance, right? Now taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. Very easy. So see how you will do. First you will write, let total distance, it is given the question that our total distance is x kilometer. Total distance is what? X kilometer, and the total fare is ₹y. ठीक है, this is equals to sign है ये y. Now the fare for the first kilometer, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर ये क्या कह रहे हैं, आपका क्या है, ₹8 लिखा है यहाँ पे. दैट फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 एंड जो उसके बाद का सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगा उसका फेयर क्या होगा. सो द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आपका क्या है, x-1. क्यों है x-1? मैंने कहा ना कि 1 किलोमीटर को जैसे आपने ट्रैवलिंग शुरू किया, ठीक है, 1 किलोमीटर डन, जैसे 1 किलोमीटर डन हो गया उसके बाद के जो डिस्टेंस होंगे, जो भी आपके डिस्टेंस होंगे वो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, यानी कि आपने इसका फेयर ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, यानी कि आपको इसके बाद का फेयर सबमिट करना है. तो आप सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कैसे लिखोगे कि हमारा ये 1 किलोमीटर रिमूव कर दो, इसको हटा के बाकी वाले डिस्टेंस होंगे, ठीक है. इसलिए मैंने x- में लिखा है कि x आपका टोटल डिस्टेंस है, बट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या होगा जब उसमें से 1 किलोमीटर आप हटा दोगे, ठीक है. नाउ the next statement will be fare for subsequent distance. इसका फेयर क्या होगा, फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज गिवन दैट ₹5, ठीक है. तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे दैट फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस x-1 तो किलोमीटर है और इसका फेयर क्या हो जाए जब इसको आप ₹5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. तो ये है इसका मतलब, 1 किलोमीटर का पे कर दिया आपने जो ₹8 है, और जो बाकी के डिस्टेंस रह जाएंगे 1 किलोमीटर के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 किलोमीटर यू विल पे ₹5 फॉर एवरी किलोमीटर, ठीक है. तो इस तरीके से लिखते हैं, ये बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को समझना. टोटल डिस्टेंस x है, टोटल फेयर y है, उसके बाद पहले किलोमीटर का आपने ₹8 उनको सबमिट कर दिया है, तो जो बाकी के आगे के जो डिस्टेंस होंगे उनका हर एक डिस्टेंस आपको वो ₹5 लेगा, और इसलिए मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर को रिमूव कर दिया, और जो बाकी के बचे डिस्टेंस होंगे, जैसे सपोज करो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर आया, तो आपको क्या करना है, 20 में से 1 किलोमीटर तो आप माइनस करो, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए आपने ₹8 दे दिया है, लेकिन 20 में जब 1 हटा के जो 19 किलोमीटर्स बचे उसके लिए आप कितने रुपीस आपको मल्टीप्लाई करना है 5, क्योंकि उसके लिए आप ₹5 सबमिट करोगे हर 1 किलोमीटर का.
तो ये बेसिकली यही है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे इक्वेशन क्या बन रही है, द इक्वेशन इज टोटल फेयर, क्या है हमारा y है, तो हमारा टोटल फेयर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका इक्वेशन लिखना है। पहले तो आपने 8 रुपीज़ दे दिया है पहले किलोमीटर के लिए, फिर आप क्या कर रहे हो, ₹5 दे रहे हो किसके लिए, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए, ये लिखोगे आप, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सो फाइनली यू कैन राइट इट लाइक दिस, 8 + 5x - 5, now transpose solve the like terms, so you will get 8 - 5 is 3 + 5x, बन गई आपकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका देखो लीनियर इक्वेशन तो बन गई, ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो आप सबको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, आपने बहुत बार कर लिया, तो आपको पहले क्या करना है, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप बॉक्स बनाएंगे, इसके सोल्यूशंस फाइंड करेंगे x एंड y, आप इसके 2-3 जितने चाहे कर सकते हैं, मिनिमम 2 सोल्यूशन तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करिए और y आ जाएगा, सपोज करिए मैंने x 0 ले लिया तो y क्या आएगी 3, अगर मैंने x 1 लिया है तो y विल बी 8। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ओके, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ सी द 5th क्वेश्चन, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन 4.6 एंड 4.7 फिगर, ठीक है। आपको चूज करना है कि ये किसका ग्राफ है, यहाँ पे ये फिगर का ये रहा ग्राफ और इस वाले का ये रहा ग्राफ, और आपको चूज करना है ये किसका ग्राफ है। तो कैसे करोगे, आपको पता है इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है और चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे आप, ये सोल्यूशंस है, 3 सोल्यूशंस है। अगर देखिए मैं यहाँ पे चेक करती हूँ y = x, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो इज इट इक्वल्स टू -1, नो, तो ऑब्वियसली पहला तो नहीं होगा। सेकेंड यू कैन राइट दिस x is equals to -y, now if you are taking x as 1, so you will get, तो अगर मैं x 1 ले रही हूँ so you can see what will be your y, यहाँ पे y क्या हो जाएगा -1। तो इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे मैंने y अगर 1 लिया है so your x will be, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो अगर ये 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे इसका मतलब ये है कि अगर आपने y -1 लिया तो ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -y, अगर मैंने x माइनस यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है, तो ये मीन्स x इज -1 है, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे y के लिए तो y क्या आएगा 1 ही तो आएगा। तो देखो इसको वेरीफाई नहीं कर रहा ये, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसका कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें से चेक करना है आपको, ये सारे आपके सोल्यूशंस गिवन है, ठीक है। अगर आप इसमें चेक कर रहे हो y इज इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। अगर मैं ये सोल्यूशन ले रही हूँ -1 and 3, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया -1 + 2, तो क्या ये 3 आ रहा है, नहीं ये तो 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड के लिए चेक करो y इज इक्वल्स टू x - 2, तो अगेन मैं आई एम टेकिंग एज -1 एंड -2, तो क्या ये 3 आया, नहीं आया, ये -3 आएगा, तो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको कहना अगर x की वैल्यू पुट करो तो आपको y आना चाहिए, जैसे हमने यहाँ किया। अगर मैं x -1 यहाँ पे लूँगी, जैसे ये -1 ले लिया, तो y देखना यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 पुट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है। अब मैं इसको लेती हूँ y इज इक्वल्स टू -x + 2, सो आई एम टेकिंग x एज -1 ना, क्योंकि पहला सोल्यूशन में क्या है -1 है, सो यू कैन सी 2 माइनस विल बी +1 एंड +2 विच इज 3, देखो आ गया 3, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ, राइट। इस ग्राफ का कौन सा इक्वेशन है, ये है, और यहाँ का कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस चेक करना, आपको फिगर गिवन है, सिर्फ चेक करना है, बहुत ईजी। नाउ सी द 6th one,
The question is saying if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, तो जो भी वर्क हो रहा है एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट फोर्स देखो यहाँ पे हमें गिवन है 5 यूनिट्स, तो आप इसको अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हो यहाँ पे दैट योर कांस्टेंट फोर्स इज गिवन दैट इज 5 यूनिट. ठीक है, यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और ये कह रहा है जो भी वर्क हो रहा है उसका उस फोर्स के थ्रू, तो वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, राइट. अगर वहाँ पे जो वर्क इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये इसका मतलब होता है. नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, 2 वेरिएबल के फॉर्म में शो करना है एंड इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं. तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, let the distance traveled is x unit is equals to x unit. ठीक है, इन सबको हम यूनिट्स में ही लिखेंगे. then your work done, let's take your work done will be y units. तो according to question is what that, वैसे आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे वर्क डन क्या है आपका y, फोर्स इज 5 एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो डिस्टेंस है वो क्या है x. तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5x बन गई इक्वेशन. अब आपको सेकेंड जो इसका स्टेप है क्या करना है, आपको इसको सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि हमें ग्राफ के लिए सोल्यूशन चाहिए. तो अगर आप x 0 ले रहे हो तो y विल बी 0, x 1 ले रहे हो तो y विल बी 5. कितना इजी है, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. अब देखिए इसमें क्या है, और भी क्वेश्चन है इसके फर्स्ट और सेकेंड, जो ये कह रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. अगर डिस्टेंस 2 है तो आपको ये बताना वर्क डन क्या होगा. तो आप यहीं पर फाइंड कर सकते हो. अगर आप इस बॉक्स में फाइंड करना चाहो तो देखो कैसे फाइंड करोगे, x और y. ठीक है, तो यहाँ पे y को वर्क डन लिया. अगर मैं बोलूँ आपका वर्क डन क्या है, डिस्टेंस इज गिवन 2 यूनिट्स ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा वर्क डन 10. अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ, देखो 0 वो तो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया, तो ये क्या होगा 0 होगा. तो बहुत ईजी है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी भी प्लॉटिंग कर सकते हो, आप ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा. Now the question 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards as the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. Means Yamini and Fatima दोनों ने एक साथ कितना contribution किया, rupees 100 का, and you have to form a linear equation. Okay, so let's take their contribution as rupees x एंड वाई एंड ड्रॉ द ग्राफ. बहुत ईजी है. अगर आप इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को लिखना चाहते हो तो आप पता है कैसे इनको लिख सकते हो. देखिए, लेट द कंट्रीब्यूशंस, ये मैं क्वेश्चन से ले रही, क्वेश्चन में इनके कंट्रीब्यूशन को बताया गया. देखिए लिखा है ना, कंट्रीब्यूशंस को एक्स और वाई लेट करना है. सो लेट देयर कंट्रीब्यूशंस ऑफ यामिनी एंड Fatima be rupees x and rupees y, okay, respectively. So you can say according to question is x plus y, क्योंकि दोनों का साथ में जो contribution है वो है रुपीज 100 का. तो इक्वेशन फॉर्म हो गई. Now you can find the what solution to make your ग्राफ. तो अब देखो बहुत इजी है. अगर आपने यहाँ पे x लिया है 0 तो आपका y आ जाएगा 100. अगर आप x ले रहे हो 50 तो y आ जाएगा 50. अब आप क्या कर सकते हो, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, सो यू कैन टेक, लेट मी इरेज दिस लाइन, यू कैन टेक एज दिस वैल्यू, यू कैन टेक योर स्केल. आप स्केल अपना कैसा ले सकते हो, आइडिया आपको मिल ही गया होगा. ठीक है, आप 0, 10, 20 वाला स्केल ले सकते हो, जिससे क्या आपको ईजी होगा. देखिए कैसे आप बनाओगे, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है, और ये आपकी लाइन होगी.
सो यू कैन टेक दिस इज 0, आप स्केल ले लो 10 20 वाला, 10 20 30 40, ठीक है, दिस इज y x। इस तरीके से आप 50 तक ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 100 इज देयर, तो आपको 100 तक लेना है। एंड देन दिस इज -10 -20 सो ऑन। तो आप ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते हो, बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आप किस तरीके से उसको ले सकते हो, उसका स्केल। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए प्लॉटिंग। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is the last question of this exercise. In countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये आपका इक्वेशन है जिसमें आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपने पढ़ा हुआ है, आप अपने साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारे पास गिवन है इक्वेशन। So the first part is draw the graph of this linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। यानी कि जब आप प्लॉटिंग करेंगे ना ग्राफ की, जैसे ये x होगा और ये y होगा, तो सेल्सियस की जो डिग्री सेल्सियस होगा आप यहाँ पे पुट करेंगे x पे, और जो फ़ारेनहाइट का होगा आप वो पुट करेंगे y पे। ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो आप इसके लिए बॉक्स बना सकते हो, जैसे मैं x और y एक्सिस लिखती हूँ ना, तो जैसे मैं लिखती हूँ x और y, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों के लिए आप फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जैसे आपने c सपोज करो आपने 0 लिया है, तो f क्या आ जाएगा 32। इसी तरीके से आप c आप ले सकते हो, ऐसा नंबर लो कि ये इजिली कैंसिल हो जाए। जैसे अगर मैं देखो 5 है यहाँ पे, यानी मैं 10 लूँगी तो इजिली कैंसिल हो सकता है, तो मैं -10 ले रही हूँ ताकि हमारा वैल्यू यहाँ पे थोड़ा छोटा सा आए और ग्राफ अच्छे से बन सके। तो अगर मैंने लिया f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू -10 प्लस 32, तो 5 2 ज़ा कैंसिल, दिस विल बी -18 प्लस 32 एंड विच इज +14, यानी कि ये वैल्यू आएगी आपकी 14। अब आप इसकी ग्राफ प्लॉटिंग कर दीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बहुत इजी है, उसी सेम इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो क्या था इक्वेशन, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो ये कह रहा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस गिवन, हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो लेट्स पुट दिस 30 डिग्री हेयर। So you will get, you can cancel this 5 1s are 5 6s are, so 9 6s are 54 plus 32, which means the temperature is 86 Fahrenheit। आ गया आंसर। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इज इफ टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, राइट। सो अगेन डू दिस, यूज द सेम इक्वेशन दिस। सो 95 इज गिवन हेयर एंड यू हैव टू फाइंड द सेल्सियस। सी हमें फाइंड करना है। So you can transpose this to this side. So 95 minus 32 is equals to 9/5 Celsius. So you will get 363 9/5 Celsius. So Celsius will be 63 into 5/9. So 9 7s are cancelled. 7 into 5 is 35 degree Celsius. आ गया थर्ड का आंसर। अब आपसे फोर्थ पूछा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, so what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, so what is the temperature in Celsius? So पता है क्या करना है, अब पहले इसके लिए 0 पुट करना है। देखो फ़ारेनहाइट क्या है आपका 9/5 डिग्री प्लस 32, तो इन्होंने कहा पहले क्या है, सेल्सियस 0 है, तो f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे +32, यानी कि फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा 32, ये इसका आंसर। Similarly, you have to do when Fahrenheit is 0, what temperature is in Celsius. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, I'm going to erase this content first. देखिए फोर्थ पार्ट कर रही हूँ, उसी को मैं कंटिन्यू। f इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब आपसे कहा है कि फ़ारेनहाइट 0 है, ठीक है, और आपको सेल्सियस फाइंड करना है, इज प्लस 32। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 32 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -32 इज इक्वल्स टू 9/5 सी। सो यू कैन सी योर सेल्सियस विल बी -32 इंटू 5/9। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके, मीन्स इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में। तो अगर आप उसमें करना चाहें तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -160
अपॉन 9, और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका आंसर आया है फॉर द व्हेन फ़ारेनहाइट इज 0, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज सेइंग, is there a temperature which is numerical the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि दोनों में सेम होगा न्यूमेरिकली? तो पता है क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को या तो फ़ारेनहाइट ले लेते हैं। जैसे देखिए F इज इक्वल्स टू क्या था, 95/C प्लस 32। तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि अगर वो सेम हुए तो, सो लेट्स टेक F इज इक्वल्स टू C। अगर दोनों सेम है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, so I can put like F is equals to 9/5 F plus 32। इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ पहले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर जैसे दोनों सेम है, सो F is equals to F minus 9/5 F plus 32 इक्वल्स टू के इधर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एलसीएम वगैरह होगा, सो दिस विल बी 5F माइनस 9F/5 इज इक्वल्स टू 32। इसको जब आप सॉल्व करिए, मैं इसका आंसर ऊपर लिख रही हूँ, सो दिस विल बी योर -6/5, ओ सॉरी -4 नॉट 6, -4/5 F इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे अब जब F सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आप दिस 4 1 जा 4 8 जा कैंसिल, तो F क्या हो जाएगा -40। तो यहाँ पे F आएगा -40। तो इस टेम्परेचर पे क्या आप कह सकते हो कि दोनों न्यूमेरिकली सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो या आप कुछ बताना चाहते हो, सो यू कैन, योर कमेंट्स आर ट्रूली वेलकम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।